Yeah. Hi Divya. I think अब हम 3:10 Hi, हो गए. Radhisham Divya. But the number is not right. उसको म्यूट करती हूँ. I had taken two of them. चलो अब तो सब आ गए. हाय वंदना, फाइनली आ गई तू. I actually Radhika सो रही थी, so I thought कि चलो ठीक है. Good. So the book called you. See, you Yeah. had to come. And it's a beautiful chapter, relationship. Everyone wants to improve their relationship some way or the other. हर एक की लाइफ में Yeah. नो कहीं ना कहीं, और अगर अच्छा है तो उसको और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल और अच्छा करना चाहते हैं, और हम लोग कर भी सकते हैं. इट इज ऑल विद इन अस. द पावर इज विद इन अस, विच वी जस्ट नीड टू हार्नेस इट. है ना? हम सही लोग को है. सिर्फ अवेयर होना है. हम लोग के पावर्स को लेके अवेयर होना है, रियलाइज करना है, एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट. हाय माधुरी. Hi Payal. Vicky को भी hi. Yes. Okay, so we will not wait further. Let us start. 3 of them have already written. They won't be able to join. I think one of them, Vandana, has already joined. So today we'll be doing the law of attraction is a sticky business. जो हम लोग से आके चिपक जाता है. It sticks to us. How? Let us read. Who would like to read today? I can read. Rinku? Yes. This size of font is okay with you, no? Yes. Yeah. Start, Rinku. Should I start? Okay. Yes, Rinku. The law of attraction is a sticky business. The law of attraction is a sticky business. When you rejoice in another person's good fortune, their good fortune sticks to you. When you admire or appreciate anything about another person, you are sticking those qualities to yourself. But when you think or discuss negative things about someone else, you are sticking those negative things to you too. And you are putting them into your own life. Yeah. तो अभी तक तो हम लोग अपने पास क्या कर रहे थे, थिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे थे. द थिंग्स वी लव. ये गाड़ी अच्छी लगी, आई गेव लव टू इट एंड वी अट्रैक्टेड टू अस. यू नो, घर अच्छा लगा, कपड़े अच्छे लगे. सो ऑल द थिंग्स अराउंड अस, जो भी अच्छा लगा, वी वर अट्रैक्टिंग टू आवरसेल्व्स बाय गिविंग लव एंड अटेंशन टू इट. अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन द स्टिकी बिजनेस, यहाँ पे क्या है, हम लोग क्वालिटीज को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं. राइट? तो अगर हम लोग किसी की when we rejoice in another person's good fortune, मतलब कोई बहुत अच्छा कर रहा है, और अगर हम लोग किसी को admire और appreciate उसकी quality के लिए कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग से आके हम लोग उसको भी attract करते हैं. So we can attract those qualities as well. लेकिन जैसे अगर हम लोग appreciate करते हैं किसी के good qualities को और attract करते हैं, वैसे ही if we talk bad about another person, अगर उसकी कोई negative quality को लेके हम लोग बात करते हैं, so we attract that too as well. Okay, so we are sticking good qualities and bad qualities as well. So हम लोग को किसी से क्या लेना है, एक पर्सन के में दोनों क्वालिटीज होती है. नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. किसी में पॉजिटिव ज्यादा, नेगेटिव कम, किसी में नेगेटिव ज्यादा. इट इज ऑल लाइक व्हाट वी वांट टू चूज. If I like Rinku's, like, you know, she's always very sincere in her work, you know, very up to date. So I like this quality of her. So अगर हो सकता है उसमें वो lazy होगी, quality. I'm just assuming, Rinku, you are not lazy also. I know. I am. अगर वो lazy होगी, maybe. But then I really like whatever she does it with full heart, you know, very sincere in her work. So I have a choice what to choose and what to talk about. I will choose to ignore her laziness, and I will say I will only talk about her sincerity with my other friends, to her, to my anybody. And I attract that quality in me. So we always have a choice कि हम लोग को क्या किसके बारे में बात करना है और किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है. वही अगर मैं सिंसियरिटी छोड़ के ओ गॉड शी इज नेवर पंक्चुअल, शी इज सो लेजी, काम ही नहीं करती है, किसी से मैं बात कर रही हूँ, तो मैं उसको अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी तरफ. So we always get a choice to attract. The law of attraction is responding to your feelings.
Whatever you give, you receive. And so if you stick a label on any person, circumstance, or events in life, you are sticking the label on you, and that's what you will receive. So लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग का हमेशा फीलिंग्स, तो सी योर फीलिंग्स, किसी और का फीलिंग्स नहीं, वो उसकी फीलिंग्स हम लोग के लिए क्या है, वी आर नॉट कंसर्न. जो हम लोग की फीलिंग्स क्या है उस समय, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ओनली वर्किंग विद आवर ओन फीलिंग्स, राइट. सो व्हाटएवर वी गिव वी रिसीव दैट. एंड अगर हम लोग किसी पर्सन पे वो जो लेबल आजकल लगा लेते हैं, जज कर लेते हैं, ये ऐसी है वो वैसी है, तो ऑल दैट वी आर अट्रैक्टिंग टू आवरसेल्फ, क्योंकि हम लोग वैसा ही फीलिंग्स दे रहे हैं and we are receiving that. So we have to be very particular about what we are talking and talking about people. अभी आएगा जो हम लोग इतने गॉसिप करते हैं ना, उसके बारे में भी आएगी. Now this is fantastic news, because it means you can stick everything you love and want to you by looking for the things you love in other people and saying yes to them with all of your heart. The world is your catalog, and when you understand the power of your love, it is a full-time job noticing everything you love in other people. But it's the easiest and best way to change your whole life. It beats struggle and suffering. All you have to do is notice the things you love in other people and turn away from the things you don't. So you don't give them any feeling. How easy is that? Yes. So Vandana, are you getting your answers? कल भी वो बोल रही थी ना, पूछ रही थी, her question was something of this kind only. What to do? You notice. So all you have to do is notice the things you love in other people. आपको बाकी सब चीज को neglect करना है, देखना ही नहीं है. You have to turn away from that. And either you go away from that place, or you know अपने, मैंने जैसे बोला है, what you start thinking about the things you like, you start अपने मन में गाने गाने लग जाओ, whatever it is, if you can't move away from that place. So there, and this is actually all about, ये एक दिन में नहीं होगा. Like if you say, you told me today and tomorrow I tried and it just did not happen, वो होगा नहीं. It is like your training of your mind and training of your soul. like आपको every day आपके अंदर जो strength है, जो power है, एक दिन में harness नहीं कर सकते हैं. That is why this magic book was structured in this way. उसके क्या होता है, उसके practice से we are making ourselves powerful. हम लोग अपने inner strength को और power दे रहे हैं by paying gratitude, by practicing gratitude every day. Who has written this line on screen? हाँ, कुछ क्यों मिल रहा है क्या? 999. बचपना याद आ रहा है नहीं, अभी जो क्लासेस में बच्चे लोग करते हैं. Right. So तो ये हम लोग को एक, मेरे को क्यों याद आ रहा है. So how you have to do it? सॉरी नहीं बोलो. Sorry. श्वेता इज टेलिंग सॉरी. मैं बोली सॉरी नहीं बोलो, ये तो मस्ती है ना, ये तो मजा है. Yes. Oh, she has written. I'm not reading the chat. नहीं, अभी उसका फ्लैश पॉप अप हुआ ना चैट, दैट्स व्हाई. Okay. तो हम लोग को वही देखना है जो हम लोग को दूसरे में अच्छी क्वालिटीज जो है उसी को देखना है. How things are. We don't have to notice that we just have to notice the things we love in other people and turn away from the things we don't like about any other person. So the choice is as, और ये वर्ड हम लोग को एक तो ये जो कैटलॉग है, रिमेंबर दैट रेस्टोरेंट का कैटलॉग जो था, द लाइफ इज ऑल्सो अ कैटलॉग. इट इज ऑन अस व्हाट वी वांट टू चूज. उसमें सब टाइप के क्विजीन है, इंडियन, चाइनीज, व्हाटएवर यू लव यू चूज दैट. You ignore. हम लोग टर्न पेज नहीं कर देते हैं मेन्यू कार्ड का. The things which we, if you are not into drinking, we just turn away. Non-veg, we just turn away. So we just have to turn away from their situation which we don't like. Taking the first footstep with a good thought, the second with a good word, and the third with a good deed, I entered paradise. Book of Arda Viraz, Zoroastrian religious text. अच्छे विचार के साथ पहला कदम उठाकर, अच्छे शब्द के साथ दूसरा कदम उठाकर, और अच्छे काम के साथ तीसरा कदम उठाकर मैं स्वर्ग में दाखिल हो गया. समझ में आया इसका? गुड थॉट, गुड वर्ड एंड गुड डीड. तो पूरे बुक में हम लोग क्या करते आ रहे हैं? व्हाट डज, क्या वर्ड्स थे वो जिसको उन्होंने इस कोट में बोला है? कैन यू रिलेट? द एंटायर बुक, इवन इन मैजिक बुक इट वाज देयर, एंड इन पावर बुक बार बार आया है. कौन बताएगा? गुड थॉट,
good word and good deed. वो जो be, do, have है ना, Exactly. तो सबसे पहले वैसे भी कैसे स्टार्ट होता है, विद अ गुड थॉट. अच्छे थॉट आएंगे तो हम लोग अच्छा फिर वैसा ही बोलेंगे और अच्छा एक्शन होगा, एंड देन विल रिसीव, राइट. तो इट ऑल स्टार्ट्स हियर. तो और उसके बाद जब हम लोग बहुत ही उस जोन में हो जाएंगे, अच्छा ही काम करेंगे, अच्छा ही एक्शन लेंगे, अच्छा ही चीज मिलेगा, तो विल ऑलवेज बी हैप्पी हैप्पी हैप्पी. तो नहीं बोलते हैं आई एम ऑन 7th क्लाउड, यू नो, आई एम ऑन टॉप ऑफ द क्लाउड, 7 हेवन में, हम लोग तो हेवन ही पहुंच गए, इट इज ऑल पैराडाइज. So then we will enter the paradise, right? So it has to go that way. First step is always, it starts from good thought. तभी तो बोलते हैं सोच के बोलो, अच्छा बोलो, पॉजिटिव बोलो. Yes. Gossip is sticky too. Gossip seems harmless on the surface, but it can cause a lot of negative things in people's lives. Gossip is not giving love. Gossip is giving negativity, and that's exactly what you receive back. Gossip is not harmful to the person who is being spoken of. Gossip harms those gossiping. Yay. So who love gossiping? जो अब तक बात कर रहे थे अब सब बंद हो जाएगा. So gossip is not harmful to the person who is being spoken of. हम लोग जिसके बारे में इतना बात कर रहे हैं, it doesn't, you know, affect that person at all. उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा. जो बिगड़ेगा हम लोग का बिगड़ेगा. It will harm us. We are attracting all those things we are talking about bad about another person. We are attracting to ourselves. So next time से अगर gossip करना हो ना, तो उसको अच्छी वाली gossip करेंगे. We'll only talk about the good things about the other person so that we attract that. When you are talking with a family member or a friend and they tell you about some negative thing that someone said or did, they are gossiping and they are giving out negativity. As you listen to them, you are giving out negativity too, because you are a feeling being and you cannot hear negative things without your feelings dropping rapidly. When you talk with a work colleague at lunch and you both talk negatively about someone, you are gossiping and you are giving out negativity. You can't talk about or hear negativity and have good feelings. Absolutely. तो अगर हम लोग किसी के बारे में भी बात कर रहे हैं, अगर हम लोग अपनी मदर इन लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, या अपनी ननद के बारे में बात कर रहे हैं, या एनी अदर मेंबर के बारे में कर रहे हैं, या कोई कुलीग अपने बॉस के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई किसी दूसरे बॉस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग किसी के नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस समय हम लोग का फीलिंग कैसा होगा? अच्छा होगा? नहीं होगा. इफ यू आर टॉकिंग बैड अबाउट अनदर पर्सन, तो या तो एनवी, मतलब नीचे के जितने इमोशंस है उसमें से तो कुछ होगा ना. एनवी को लेके कर रहे होंगे, या यू नो कंटेंटमेंट, या जो नॉट कंटेंटमेंट, किसी को कंटेम्प्ट कर रहे हैं, राइट. तो उस टाइप के कुछ फीलिंग होंगे, तो वो सब नेगेटिव फीलिंग है. सो वी आर अट्रैक्टिंग दैट ओनली एंड वी विल ड्रॉप रैपिडली. हम लोग की जो फीलिंग्स है वो, और क्या होता है ना, एड ऑन करते हैं. हम, मैं कुछ बोली, सामने वाला कुछ और बोला, उसमें वो एड ऑन होते गया. So even if you are not talking, but if you are listening and you add to it, if you agree to it, you are also a part of it. So we are also attracting those negativity of the other person. वो भी हम लोग से आके stick कर जाएगा. So gossip is sticky too. So we are sticking all those qualities to ourselves which we don't want. तो अगर कोई और बोल रहा है, either you change the topic, और what else we can do, ये मैंने पहले भी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर लिया. Either we can change the topic or you can, you know, start talking good. अगर सामने वाला बोल रहा है, पता है वो उस दिन ऐसा बोल रही थी, वो ऐसी है, पर हम लोग उसके ऊपर, पर पता है वो बहुत अच्छी है, वैसे बहुत हेल्पफुल है, वैसे बहुत काइंड है. Either you just change that way, right? Or you just say maybe. आपको yes नहीं बोलना है. yes बोलने से इसका मतलब आप उसके साथ agree कर रहे हो. So you are a part of it. We will not agree to it. आप या तो मे भी बोल के वहां से उठ जाओ. That's it. और या चुपचाप सुन ले. नहीं चुपचाप सुन रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है? Silence means what? Silence means what? कि yeah, you are accepting it, whatever the other person is. Okay, got it. Either you change it, either you say maybe and change the topic, or you, if you have a choice, you can get up from there. Okay. है ना? So, to put it frankly, we need to be mindful of not sticking our nose in other people's business, because their business will get stuck on our nose.
Unless you want it in your life, turn away from it without feeling anything. You will not only be doing yourself a favor, but you will also be doing the other people a favor who don't realize the negative effect gossip can have on their lives. Exactly. तो हम लोग दूसरे का कैसे फेवर कर सकते हैं? यह अगर हम लोग उस टॉपिक को वहीं बंद कर दें, अगर हम लोग उसमें ऐड ऑन नहीं करें और एक्सेप्ट नहीं करें, वो कितनी देर सामने वाला बोलेगा, वो चुप हो जाएगा. तो वी आर डूइंग फेवर टू दैट पर्सन आल्सो, राइट? If you find yourself gossiping or listening to gossip, stop mid-sentence and say, but I am so grateful that, and finish the sentence with something good about the person being gossiped about. राइट. तो देखो यहाँ भी लाइफलाइन मिल गया है. रोंडा बहन कितनी काइंड है ना, हम लोग को हर जगह एक लाइफलाइन दे देती है. मैजिक बुक में भी एक लाइफलाइन था, यहाँ भी एक लाइफलाइन मिल गया है. तो अगर भूल से जनरल है, अभी हम लोग इतने प्रैक्टिस में नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग के आई वी कैन टॉक अबाउट, और वी इफ वी हैव एडेड, लाइक सामने वाला किसी के लिए कुछ बोला एंड इफ बाय चांस यू हैव एडेड कि हाँ यार मैं भी देखी थी वो उसको ऐसे बोल रही थी, बट इफ यू हैव रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर अवेयरनेस एंड रियलाइजेशन हो जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी माफ कर देता है. ये भी हम लोग अभी पढ़े थे ना, आई थिंक इसके लास्ट टू लास्ट चैप्टर में. तो अगर हम लोग को वो रियलाइज हो गया एंड देन इफ वी यूज अ लाइफलाइन, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि दैट लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू हर शी वाज सो हेल्पफुल टू मी, शी डिड दिस वर्क फॉर मी. अगर हम लोग वैसा बोल देंगे देन हम लोग उसको वहीं पे नेगेट कर देंगे. पायल, I want to ask something. यस माधुरी. हाँ पायल, यदि कोई बड़े लोग हैं, कोई बड़े हैं और वो बुराई कर रहे हैं कोई का, हाँ, तो उस समय तो अपने तुरंत ऐसे उठ नहीं सकते ना, तो अपने संग में बैठे हुए उनके. हाँ, तुम बैठी भी हो तो जैसे मेरी मदर इन लॉ अगर पहले करती थी ना, तो मेरे को तो वैसे भी हैबिट नहीं था, तो मैं ऐसे बोलती थी हो सकता है, मतलब मे बी, बट आई एम नॉट अग्रीइंग टू इट. आई एम नॉट सेइंग यस. यू जस्ट से अच्छा हो सकता है, यू जस्ट से हो सकता है. मतलब हिंदी में वो शायद, हाँ शायद मतलब तो मे बी हो गया ना. हाँ Payal, अब जैसे like today's incident, like my cousin, she was crying that she had some mother-in-law, she was very rude with my cousin. So like she was crying and she was telling me, अभी उस situation में I cannot say maybe because I know her mother-in-law was very rude with her. So like अभी उस time में when she's telling me तो you don't agree to it, तुमको उस समय तो तुमको ऐसे भी उसको कंसोल करना है. बोला इट्स ओके. I was consoling her कि don't cry or don't do this, मतलब don't cry, don't get upset. You did I not just add on to it. You did not add on to it. You okay, just this you were fine. listening, and you did not say yes also she's like that. So you did not agree to her also. What you did was you just listened and then you said अच्छा सब अच्छा हो जाएगा, चलो तुम्हारे को आज यहाँ ले चलते हैं, वहाँ ले चलते हैं, जो वैसी बातें करने लगो जो उसको अच्छी लगे. She poured her because मेरा तो आज ये हाल हुआ when my cousin was crying that her mother-in-law was rude with her, उसको रोते देख I started crying. So I had tears in her eyes because she was crying. I could see her pain. So like at that time, I had tears in my pain. Like कि मतलब कि she's crying. तो वो देखो वो feeling कैसे pass on होता है, वो negative attract होता है और हम लोग भी उसी negative feeling में, sad feeling में चले जाते हैं. But exactly. if what you could have done like हो गया, and then if you have realized नहीं हम लोग तो मैं तो नीचे जा रही हूँ, below the line जा रही हूँ, and you could have started something which she likes, तो आप उसको भी बल्कि pull up कर सकते हो अपने साथ. Okay. Right? You could have turned around the situation and circumstances. And then बाद में आप उसको अभी उस situation में नहीं थी, you could have explained to her like आप अपना ये बता सकते थे. Talk. There are some good qualities. At times it happens. It's okay. और इससे बड़े हैं ना तो एक तो एटीट्यूड बना लेना चाहिए यार, बड़े हैं. अगर एक तो तकिया कलाम जिसको बोलते हैं ना, कुछ ऐसा बना लो, जैसे बोलो ना यार छੱਡ दे, इट्स ओके, की फर्क है. हाँ तो ऐसा कुछ बना, अरे बड़े हैं बोल दिए इट्स ओके यार. तो वो क्या होता है ना, तुम देखो तुम्हारा थॉट चेंज होने लग जाता है इमीडिएटली. और वही अगर हम लोग बोलते हैं सच्ची यार आई एम फीलिंग सो बैड फॉर यू, सच्ची बहुत ही बुरा की, वो क्या होता है हम लोग और फ्यूल अप और ज्यादा ऐड ऑन हो जाता है, एग्जैजरेट हो जाता है वो चीज. या फिर मैं उसको ये समझाऊं कि स्टार्ट इग्नोरिंग, लाइक जस्ट मतलब इग्नोर इन द सेंस इग्नोर द सिचुएशन,
just you start keep quiet, मतलब cool रहो, just start ignoring the जितना situation. उसका बात करोगे वही चीज तो हम लोग वापस अपने में अट्रैक्ट ही कर रहे हैं, Attract तो और करे, बढ़ेगा ही exactly. आपकी लाइफ में और बढ़ेगा। तो इससे अच्छा थिंक अबाउट समथिंग व्हिच यू लाइक एंड यू लव टू डू फॉर योरसेल्फ। और या फिर उसको अरे छोड़ना, ऐसे बोलो ना, जब कोई बड़ा, अब तो हम लोग क्या जो मैजिक बुक वगैरह किए हैं, पावर किए हैं, दे विल अंडरस्टैंड। अरे यार जब बोल रही है तो यार गुस्से के घोड़े पे चढ़ी हुई है। आप देखो जब ऐसा खुद को बोलोगे ना, आपको हंसी आने लग जाएगा। अगर सामने वाला गुस्सा कर एंड यू वोंट एबल टू रिएक्ट आल्सो, बोले ये तो गुस्से के घोड़े पे चढ़ी हुई है। और या फिर अब तो नया चीज सीखे हैं, पीटी। हाँ एग्जैक्टली, ये बोलकर टफ अभी पीटी, हंसी आ रही है कि हाँ हाँ हम बोले अरे ये तो टफ पीटी है, ये तो टफ पेट है। एग्जैक्टली, मेरे को पेशेंस सिखा रही है। हाँ राइट। तो ये सब हम लोग अपना कुछ, ये सब गेम्स है वी कैन प्ले, जो हम लोग को यहाँ पे पता चला है इन थ्रू दिस बुक। वी कैन यूज, ओ गॉड ये तो टफ पीटी है, पेट है, सॉफ्ट है, और ये कौन से घोड़े पे है, इसको तो उतारो जल्दी से यहाँ से। राइट, सो ये हम लोग यूज कर सकते हैं, बट द पीपल हु हैव नॉट डन मे बी, सो यू कुड हैव सेड अरे ये तो सैड वाले घोड़े पे चढ़ी हुई है, चलो इसको जल्दी से हैप्पी घोड़े पे लेके आते हैं मेरे साथ, दैट वे, that way we can handle the situation. If a man speaks or acts with an evil thought, a pain follows him. If a man speaks or acts with a pure thought, happiness follow him, like a shadow that never leaves him. Gautam Buddha, founder of Buddhism. यदि कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो दुख उसका पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो खुशी उसके पीछे पीछे आती है, उस छाया की तरह जो उसे कभी नहीं छोड़ती। सो लाइक हम लोग का जो शैडो होता है, इट नेवर लीव्स अस। So if we are talking evil about it, pain will follow. पेन कहाँ होता है, जहाँ इविल बातें होंगी वहां तो पेन होंगे ना, तो वो हम लोग को पीछा करता रहेगा। इट विल नॉट लीव अस ओनली। जैसे आकांक्षा बोल रही थी, वो पेन का बात ही करते जाएगी, तो उनके बारे में बुरा बात करते जाएगी, तो शी विल कीप ऑन फीलिंग बैड, वो हम लोग का पीछा छोड़ेगा ही नहीं, लाइक अ शैडो। और वही अगर हम लोग किसी का हैप्पीनेस को फॉलो करेंगे, अगर इफ वी स्पीक गुड अबाउट एनी पर्सन, द सेम गोज विद द पॉजिटिविटी आल्सो। Your reaction chooses it. Life is presenting every person and circumstances to you, so you can choose what you love and what you don't love. When you react to anything, you are reacting with your feelings, and as you do, you are choosing it. Your reaction, whether good or bad, sticks it to you, and in effect, you are saying you want more of it. And so, it's important to watch how you react in your relationships, because whether you react with good or bad feelings, they are the feelings you are giving, and you will receive more of the same circumstances to make you feel that way. राइट, तो हम लोग को हमेशा लाइफ में ना ये सर्कमस्टांसेस वगैरह आएंगे ऐसा, और हम लोग को हमेशा चॉइस मिलेगा। तो योर रिएक्शन चूजेस इट। उस सिचुएशन में हम लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, अगर सामने वाला हम लोग कोई गुस्सा कर रहा है और हम लोग भी गुस्सा कर रहे हैं, वी हैव ऑलवेज हैव अ चॉइस। इधर वी कैन स्टे क्वाइट, मूव अवे फ्रॉम देयर, टर्न अवे, अपने आप को ओवर द लाइन के जोन में रखेंगे, और वी हैव अ चॉइस कि हम लोग आंसर बैक करेंगे और उसको और वर्स करते जाएंगे। So in every situation and circumstances we have a choice and we have to decide, and whatever is happening, ये नहीं है कि उसने बोला इसलिए ये चीज शुरू हुई, इसलिए how I reacted. It is my personal choice. आपके साथ अभी भी जो हो रहा है, आप इस फीलिंग में हो, नेगेटिव फीलिंग में हो, गुस्से में हो, दर्द में हो, तो because we have chosen that situation for ourselves, nobody else. सामने वाला का साइकिल अपना अलग चल रहा है, दैट पर्सन हैज चोजन दैट फॉर हरसेल्फ और हिमसेल्फ, बट हम लोग के हाथ में है हम लोग अपने लिए क्या चूज करें। राइट, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू वॉच हाउ यू रिएक्ट इन योर रिलेशनशिप। अगर कितनी बार बोलते हैं ना, अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है चुप हो जाओ, तो वो सिचुएशन वर्स नहीं होती है। उसमें हम लोग बोलते हैं तो वो पता नहीं बात हुई थी खाली ये सामान इधर से उधर रखने की, और बात पहुंच गई है कि आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगा तक, it goes till that time, मतलब इतना worse हो जाता है। So it's all on us how we react to that situation. If a person says or does something and you find yourself feeling upset, offended, or angry, do your best to change the negative reaction right away. Yes, Simply आकांक्षा देखो इधर, हाँ
Simply being aware that you have reacted negatively takes the power out of the negative feelings immediately and can even stop them. But if you feel as though the negative feelings have a grip on you, it is best to walk away and spend a couple of minutes looking for the things you love, one after the other, until you feel much better. You can Yes. use anything you love to make you feel better, like listening to your favorite music, imagining the things you love, or doing something you love. You can also think about the things you love in the person who upset you. This might be challenging, but if you can do it, it is the fastest way to feel better. It is also the fastest way to become the master of your feelings. Yes. तो ये हम लोग इसमें मैजिक बुक में बोलो कौन सा चैप्टर का है इसमें? Magical relationships. मैजिकल रिलेशनशिप, हाँ, जो रिलेशनशिप ठीक करना है हम लोग को, तो फ्यू फोटो लेके उसके 10 क्वालिटीज लिखने हैं. जो आई थिंक प्रार्थना इज नॉट हियर, प्रार्थना, वंदना, प्रियंका इज आल्सो नॉट हियर, दे ऑल वर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट, बट दैट इज द फास्टेस्ट वे टू फील बेटर. अगर वो नहीं है, देन वी हैव ऑलरेडी मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वी लव टू डू, और हम लोग उसके बारे में वन आफ्टर द अदर सोचने लग सकते हैं और करने लग सकते हैं, यू नो. सो दैट इज द फास्टेस्ट वे. लेकिन वो बहुत फास्टेस्ट है अगर हम लोग गुड क्वालिटीज होते हैं. बट द थिंग इज वी आर नॉट बीइंग एबल टू सी. व्हाई वी आर नॉट बीइंग एबल टू सी? बिकॉज़ वी डोंट वांट टू सी. ऐसा भी होता है. पायल 10 क्वालिटीज मतलब अगर जैसे किसी बंदे के साथ लाइक मतलब बंदा नहीं पसंद है तो हाँ. उसके 10 गुड क्वालिटीज लिखने हैं. हाँ, मतलब ग्रेटफुल उसके 10 गुड क्वालिटीज के लिए. ओके. सब में कुछ ना होता है ना. आपके साथ अच्छा नहीं है, लेकिन मे बी शी इज वेरी गुड. जैसे मदर इन लॉ हाँ. का ले लो, शी इज गुड विथ हर हस्बैंड, विथ हर सन, हाँ वो हाँ हाँ. घर के काम में. तो दोज आर हर गुड क्वालिटीज ना. ओके तो ओके. आप उसको लेके उसके बारे में सोचने लगो, तो आपका भी फीलिंग्स चेंज होगा एंड सामने वाले का भी चेंज होगा. बट यू हैव टू ओके डू इट लाइक एवरी डे. ओके. यस. A man who is master of himself can end a sorrow and as he invent a pleasure. I don't want to be at the mercy of my emotions. I want to use them to enjoy them and to dominate them. Oscar Wilde, 1854 to 1900. ऑथर एंड पोएट. जो व्यक्ति अपना स्वामी है, वह किसी दुख का अंत उसी तरह कर सकता है जिस तरह किसी खुशी का आविष्कार कर सकता है. मैं अपनी भावनाओं की दया पर नहीं रहना चाहता. मैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ और उन पर हुक्म चलाना चाहता हूँ. तो लाइक अ मैन मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, मतलब जो अपने आप पे जिसका कंट्रोल हो जाए, कैन एंड अ सॉरो एज ही कैन इन्वेंट अ प्लेजर. अगर उस समय अगर मेरे नेगेटिव फीलिंग में हूँ, बैड फीलिंग में हूँ, पेन में हूँ, दर्द में हूँ, सॉरो में हूँ, उसी समय अगर उसको ये आ गया कि मेरे को कैसे अपने आप को जो भी वो चीज करना चाहता है और अपने आप को अबव द लाइन ले जाए, तो वो अपने आप को, मतलब आई वांट टू यूज देम एंड टू डोमिनेट देम. मतलब वो जो इमोशंस होते हैं ना, नेगेटिव इमोशंस है, उस पे वो डोमिनेट करने लग जाएगा. अब वो तो हम लोग पे है, हम लोग किसको पावर दे रहे हैं, विच इमोशन को हम लोग पावर दे रहे हैं. इट इज ऑल ऑन अस. You can change any negative situation in your life, but you can't change it with bad feelings. You have to react differently to the situation because if you keep reacting negatively, your bad feelings will magnify and multiply the negativity. When you give good feelings, the positivity magnifies and multiplies. Even if you can't imagine how a particular situation can change into something positive, it can. The force of love always finds a way. Yes. So if you can't imagine how a situation can change into something positive, ये डाउट ही मत रखना. It can. Force of love हमेशा अपनी, मतलब वो वे निकाल ही लेगा. It is just that we have to only think and give attention to positivity in our life. Love is a shield to take the power out of other people's negativity and not be affected by it. Remember the magnetic fields of feelings surrounding each person. There is a field of love, joy, happiness, gratitude, excitement, passion, and a field for every good feeling. There is also a field of anger, discouragement, frustration, hate, desire for revenge, fear, and a field for every negative feeling.
या तो अब वो ये लव इज अ शील्ड मतलब हम लोग के चारों तरफ वही जो ऑरा हम लोग बोलते हैं ना, ऑरा और मैग्नेटिक फील्ड, इट इज ऑल अराउंड अस. सो टू टेक द पावर आउट ऑफ अदर पीपल्स नेगेटिविटी एंड नॉट बी अफेक्टेड, रिमेंबर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फीलिंग सराउंडिंग ईच पर्सन. हर एक पर्सन के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम लोग को पॉजिटिविटी से सराउंड करना है कि नेगेटिविटी से सराउंड करना है, दिस इज आवर पर्सनल चॉइस. हम लोग कितना अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट किए. कितने लोगों के यहाँ ऐसा भी ऑरा रहता है जिसके पास कोई जाना ही नहीं चाहता है, उसका मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, नेगेटिव फीलिंग्स वाला. और कितने लोग ऐसे हैं जिसके आते ही हम लोग खड़े हो जाते हैं, वी आर इन ऑफ दैट पर्सन, मन करता है उनके पास जाए और बातें करें. तो दैट्स द पॉजिटिव नेगेटिव जो मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे फीलिंग्स वाले रहते हैं. आकांक्षा, योर पेट डिस्ट्रैक्टिंग मी, इज सो प्लेफुल. Yeah. मेरे हाथ में फोन आते ही he's like leave the phone and start playing with me. Yes, Rinki. A person surrounded by a magnetic field of anger doesn't feel good at all. And so, if you come into their presence, they will most likely direct their anger at you. They don't mean to harm you, but they can't see anything good when they are looking at the world through their field of anger. All they can see are things that anger them. And because they can only see anger, they are likely to get angry and hurl anger at the first person they see, often a loved one. Does this situation sound familiar? ऐसा होता है ना, हर एक फैमिली में एक होते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं कोई ना कोई, जैसे जनरली बड़े लोग में दिखते हैं. बाबा वो ताऊ जी या वो दादाजी, वो तो बहुत गुस्सैल है, वो बहुत गुस्सा करते हैं. तो उनको अगर किसी कोई भेजते हैं ना, जाओ ये उनको दे आओ, तो बच्चों में आपस में हम लोग में छोटे में नहीं होता था, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, क्योंकि उनका वो मैग्नेटिक फील्ड ही वैसा होता है कि पता नहीं कब गुस्सा कर देंगे, पता नहीं कब वो कुछ बोल देंगे. तो नोबडी वांट्स टू गो टू दैट पर्सन. तो वो होता है मैग्नेटिक फील्ड. वो तो अपने चारों तरफ, क्योंकि वो वैसा ही एंगर का मैग्नेटिक फील्ड बना रखे हैं, वो हर बात पे एंगर करते हैं, वो उसी को ट्रैक करते हैं. उनको हर एक पे मतलब उनको खाली ना वो रीजन चाहिए होता है, कुछ भी हो रहा हो उनको, वो वैसे उन लोगों को अपने आप वो रीजन मिल जाएगा गुस्सा होने के लिए. तो उनका वो ऑरा ही वैसा है, उनका मैग्नेटिक फील्ड वैसा है. दे हैव अट्रैक्टेड दैट ओनली इन देयर लाइफ. If you are feeling fantastic, the force of your magnetic field creates a shield that no negativity can penetrate. And so it won't matter what negativity anyone hurls at you, it cannot touch you, and it will bounce right off your feeling field without affecting you at all. एग्जैक्टली. और हम लोग का अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है विद पॉजिटिविटी, तो क्या होगा, कोई हम लोग के पास भी नहीं आ पाएगा, वो आके वापस लट ही जाएगा. यू नो, सो इट वोंट मैटर व्हाट नेगेटिव कोई कुछ बोलेगा भी, तो हम लोग को अफेक्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट ओनली, वी आर नॉट रिएक्टिंग टू इट ओनली, वी आर अवेयर ऑफ इट. तो इट विल बाउंस ऑफ. वो कितने जन, 2 बार कोई भी बोलेगा, 2 बार बोलेगा, फिर लगेगा इसको तो अफेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो अपने आप वहां से देखो उठ के चला जाएगा. कोई आके किसी का बुराई करेंगे, इफ वी डोंट एड ऑन टू इट, वो तो बोर हो जाएगा, वो उसी समय उठ के वहां से चला जाएगा. बट ये तो बहुत बोरिंग है, तो कुछ बोलती ही नहीं है, क्योंकि उसको तो वो चाहिए, जो उसको चाहिए था उसको मिला ही नहीं यहाँ से. राइट. हम लोग का, क्योंकि अगर हम लोग अपनी तरफ ऐसा सोच के हम लोग अपना ऑरा, अपना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, तो सो दैट पर्सन विल गो अवे, तो वो हम लोग बाउंस बैक हो जाएगा. On the other hand, if a person hurls something negative at you and you feel what they say, then you know that your feelings must have dropped because the negativity broke through your feeling field. There is only one thing to do if this happens, and that is to find an excuse to politely walk away. So you can restore yourself with good feelings. 2 negative fields multiply at a rapid rate when they come into contact with each other, and no good can ever come of it. You will know this from your own life experience. 2 negative fields together are not a pretty sight. तो अब कभी किसी को 2 जन को गॉसिप करते हुए देखेंगे ना, तो मन में ये सोचना, 2 नेगेटिव फील्ड सिटिंग टुगेदर. तो इसीलिए फिर दे आर नॉट मेकिंग एनी प्रिटी साइट टू मी. राइट. तो हम लोग को वैसे नहीं करना है. तो जब भी ऐसा कुछ हो, देयर इज ओनली वन थिंग टू डू इज, if this happens, that is to find an excuse to politely walk away, so you can restore yourself with good feelings. Okay. तो हम लोग को सब सोल्यूशन रॉन्डा बहन दे रही है कि क्या करना है उस सिचुएशन में. Muddy water, let stand, becomes clear. Lao Tzu
circa 6th century BC, founder of Taoism. कीचड़ वाले पानी को यदि शांत रखा जाए तो ये साफ हो जाता है. आई थिंक आई गेव दिस एग्जांपल. मतलब पानी अगर रहेगा, अगर हम लोग उसमें जंप करेंगे, उछालेंगे, तो वो हम लोग पे भी आएगा उछाल. Yes. If you are feeling sad, disappointed, frustrated, or any negative feeling, then you are looking at the world through that feeling field, and the world will look sad, disappointing, or frustrating to you. You cannot see anything good through a field of bad feelings. Not only is your negative field attracting more negativity to itself, but you will never see your way out of any problem until you change the way you feel. Changing. हाँ, एक मिनट को. इफ यू आर फीलिंग, तो वो बोलते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. वही है. अगर हम लोग सैड, डिसअपॉइंटेड, फ्रस्ट्रेटेड और ऐसा फील कर रहे हैं, उस समय हम लोग को ना बाकी सब जगह भी जो हो रहा होगा ना, अच्छा वाला चीज दिखेगा ही नहीं. सब वही वही वही. डिसअपॉइंटेड है तो हम लोग को वही डिसअपॉइंटमेंट वाले गाने दिमाग में आने लग जाएंगे. दूसरों के लाइफ में भी, सामने भी देखो, सब कुछ वैसा ही दिखने लग जाएगा. मेरे पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, मेरा लाइफ कितना डल है, बोरिंग है. हर चीज हम लोग को वही वही दिखने लग जाएगा. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉट ओनली इज योर नेगेटिव फील्ड अट्रैक्टिंग more negativity to itself, but will never see a way out of any problem until, अगर जब तक हम लोग अपने आप उस फीलिंग को चेंज नहीं करेंगे, we'll keep on attracting one after the other negative emotion. और इस पेज में जो है, this is the like magnetic field around a person. कितना हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करके. उसमें कितनी रेखाएं हैं, यू नो. अगर अभी हम लोग के पास शायद हम लोग एक ही बना पाए, तो कोई आ भी जाता है, चला भी जाता है. वी हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. Changing the way you feel is easy compared to running around trying to change the circumstances of the outside world. All the physical action in the world cannot change the situation. Change your feelings and the outside circumstances will change. एग्जैक्टली. इससे तो मेरे आई कीप टेलिंग इशिता, उसको लगता है ना कि बस सर्कमस्टांसेस और सामने वाला चेंज, वो ऐसा कि हमने सिर्फ पीपल एंड द सर्कमस्टांसेस एंड द वर्ल्ड विल नॉट चेंज फॉर यू. यू हैव टू चेंज योरसेल्फ. उसको मैं ये चीज से बोलते रहती हूँ. आज इस बुक में अभी और भी क्लियर हो गया. सो वी हैव टू चेंज आवर ओन फीलिंग्स ओनली. वी कांट वेट कि आप मेरे अगल बगल वाले लोग की फीलिंग्स मेरे अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए. कैन वी डू दैट? वी कैन नॉट डू दैट. वी हैव ओनली पावर ऑन आवरसेल्फ एंड we have every choice of changing our own feelings, and the circumstances apne aap change ho jayenge. Then we don't have to think about it ki how to change that. The power is from within, but we cannot receive it unless we give it. Charles Honnell, New Thought author. शक्ति भीतर से मिलती है, लेकिन ये हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि हम इसे दे ना दें. Right. So the power is from within, but we cannot receive it. जब तक हम लोग को अंदर से अगर हम लोग के नहीं आएगा, हम लोग डिसाइड नहीं कर लेंगे, पहले तो रियलाइज करके डिसाइड नहीं कर लेंगे कि आई विल स्टे अबव द लाइन, हमको अंदर का ये फीलिंग को चेंज करना है, तो हम लोग को वो मिलेगा ही नहीं. अगर देंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? तो द पावर हम लोग के हाथ में ही है कि हम लोग उसको कैसे हार्नेस करें. यस रिंकू. When someone is surrounded by a magnetic field of joy, you can feel their joy touch you from across the room. People who are popular and who have magnetic personalities are simply people who feel good most of the time. The field of joy that surrounds them is so magnetic that it draws everybody and everything to them. कंप्लीट कर ले इसको. The more you give love and feel good, the more magnetic your field becomes, and the more it expands, drawing everything and everyone you love to you. Imagine that. Exactly. So हम इसमें क्या है कि कितने लोगों को, जैसे कि रणवीर सिंह है ना, ही सो फुल ऑफ एनर्जी. तो उसके अगल बगल जो रहते हैं ना, उन लोग को, जो डांसर्स जो होते हैं स्टेज पे जब वो डांस करता है, उन लोग बोलते हैं ना, हम लोग को भी बहुत एनर्जी देना पड़ता है, बिकॉज यू नो इट पासेस ऑन, क्योंकि वो खुद इतने एनर्जेटिक है, तो सबका वो पास ऑन हो जाता है, सारे एनर्जेटिक हो जाते हैं. तो उसने अपने वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड और ऑरा बना रखा है. अमिताभ बच्चन, यू नो, इनका भी एक अलग ही ऑरा है. माय गॉड, यू मस्ट सी हाउ पीपल रिस्पेक्ट हिम इन केबीसी. मतलब पीपल आर इन टोटली नॉट ऑफ हिम. वो आए केबीसी में, मतलब देयर आर पीपल जस्ट टू सी हिम एंड टॉक टू हिम, एंड ही इज सो हम्बल. ही इज सो हम्बल. किसी को कभी कुछ वैसा बोलते ही नहीं है. सो ऑलवेज काइंड एंड ही फील सो शाय जब उसका कोई तारीफ करते हैं. एंड मैंने देखा है इवन ऑन लाइक इंस्टा एंड ऑल,
he doesn't react to any troll, तो सबको ही होते हैं, but he doesn't give any reaction to it. तो उनको जो करना है वो करते हैं, पोस्ट करते हैं, वो खुश रहते हैं, अपने उसी जोन में रहते हैं, because he has, I think, come across this and he knows the secret behind it, just to stay happy, be happy. तभी वो अभी तक अपने आप को फिट करके रख पाए. And the more you give love, feel good, the more magnetic your field becomes, and it expands, drawing everything and everyone you love to you. Love to you मतलब हम लोग जिसको जिसको चाहेंगे वो हम लोग का स्ट्रॉन्ग इतना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, हम लोग जिसको प्यार देंगे वो सब हम लोग की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, स्टिक कर जाएगा. Imagine that. Yeah. Love is the power that connects everything. When all the people in the world love one another, then the strong will not overpower the weak. The many will not oppress the few. The wealthy will not mock the poor. The honored will not disdain the humble, and the cunning will not deceive the simple. Mozi, Chinese philosopher. जब संसार के सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो शक्तिशाली कमजोरों पर बल प्रयोग नहीं करेंगे, बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का दमन नहीं करेंगे, अमीर लोग गरीबों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, बड़े लोग छोटों को अपमानित नहीं करेंगे और चालाक लोग भोले भाले को धोखा नहीं देंगे. तो हम लोग को ऐसा ही वर्ल्ड चाहिए ना, इसलिए तो हम लोग मैजिक कर रहे हैं और स्प्रेड करना चाह रहे हैं, राइट. तो बिकॉज सब में इतना इतना प्यार हो जाएगा, किसी के पास एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी के लिए जगह ही नहीं रहेगी. तो ये सब बातें आती कहाँ से, क्योंकि अभी तो लोग सिर्फ नेगेटिविटी पे ध्यान दे रहे हैं, तो बोलते ना पतन हो रहा है. You have opportunities every day to give love to other people through your good feelings. When you feel happy, it is your guarantee that you will be giving positivity and love to whomever you come into contact with. When you give love to anyone, the love will return to you, but in a far greater way than you may have realized. देखो यहाँ पे again the Rhonda is giving guarantee. When you feel happy, it is your guarantee that you will be giving positivity and love to whomever you come into contact with. तो अगर हम लोग बहुत खुश होते हैं तो हम लोग के मुंह से सब अच्छा ही निकलता है ना, कुछ खराब भी दिखता है तो हम लोग उस जोन में ही नहीं जा पाते हैं. अच्छे फीलिंग में रहते हैं, देखो हमेशा अच्छा गाना ही आता है, हमेशा दिमाग में आता है, सोच में आता है, अच्छे लोगों की बातें याद आती है. तो उससे हम लोग को क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जिसके बारे में सोच रहे हैं वो तो अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, और भी जो हम लोग के सर्कमस्टांसेस है, हमारे अगल बगल जो जितने लोग हैं वो सब उस जोन में आ जाते हैं और हम लोग सबको अट्रैक्ट करने लगते हैं, सब चेंज होने लगते हैं. When you give love to another person, if your love affects the other person so positively that they then give love to someone else, then no matter how many people are positively affected, no matter how far your love travels, all that love comes back to you. Not only do you receive back the love you gave to the original person, you receive all the love back from everyone who was affected. And the love returns to you dressed as positive circumstances, positive people, and positive events in your life. अब ये देखो कितनी बड़ी बात इसने बोली है कि मतलब ये नहीं है कि आज हम अपने अगर मेड को जैसे अगर लव दे रहे हैं तो वो अगर वही हमको दे रही है तो वहां से ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इट्स लाइक अ रिपल इफेक्ट, कनेक्टेड है सब. So because love is the power that connects everything. आज अगर हम लोग खुश हैं, हम लोग अपने मेट से अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, उसको प्यार दे रहे हैं, तो वो अपने जब घर जाएगी, इवन शी इज इन अ हैप्पी जोन, हैप्पी स्टेट, हैप्पी माइंड, उसी स्टेट से वो अपने घर जाएगी तो वो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को वैसे वो भी अच्छे से बात करेगी, वो भी क्योंकि हैप्पी जोन में है. तो इट हैज द लव हैज पास्ड ऑन टू हर चिल्ड्रन आल्सो, टू हर स्पाउस आल्सो, और वो उसका स्पाउस भी अपने बच्चों और अपने वाइफ को, एंड मे बी उसके पास उसके मदर फादर तब. तो इट इज लाइक अ रिपल इफेक्ट, एंड उनको जो ये सब प्यार और ये सब मिलेगा, इट विल कम बैक टू यू. वो प्यार आप तक भी अट्रैक्ट होगा. कैसे होगा वो भी लिखा है, एंड द लव रिटर्न्स टू यू. ये नहीं कि वो उन लोग के फैमिली सब हम लोग से प्यार करने लगेंगे. इट विल बी रिटर्न टू अस ड्रेस्ड एज पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस, पॉजिटिव पीपल एंड पॉजिटिव इवेंट. तो आप सोचो, आप एक को दे रहे हो, और इसी का आप उल्टा भी सोच सकते हो. अगर आपने अपने मेट को डांटा, वो गंदे खराब मूड में हुई, नेगेटिव फीलिंग में थी, वो जाके अपने बच्चे पे, अपनी सास पे, उसके, तो पूरा नेगेटिव दैट आल्सो विल कम बैक टू अस, और ड्रेस्ड एज यही सब.
circumstances, people, relations, events, सब चीज में. And so goes similarly to the career, like in office. अगर बॉस ने मुझे डांटा और मैं अपने घर जाके अपने वाइफ बच्चे पे निकाली, घर पे सब पे निकाली, सो इट्स अ रिपल इफेक्ट. कोलीग्स पे निकाले, फ्रेंड्स पे निकाले, तो वो पूरा बॉस पे जाएगा. और वही वो मुझसे अच्छे से बात किया, तो वो जितना हम लोग लव पास कर रहे हैं, इट विल एक तो सर्कल चलता है, इट विल कम बैक टू हिम. और वो जरूरी नहीं है लोगों से आए, उसके सर्कमस्टांसेस में भी आ सकते हैं, उसको सक्सेस भी मिल सकता है, मॉनेटरी टर्म्स में भी आ सकते हैं, हेल्थ टर्म्स में आ सकते हैं, एनी वे. So all these are like connected. On the other hand, if you negatively affect another person so much that the person goes on to negatively affect someone else, then the negativity will return to you in full. You will receive it back in the form of negative circumstances affecting money, your career, your health, or your relationships. Whatever you give to another, you give to yourself. Yeah, so it is not just the immediate effect कि इसको दिया तो इसी से मिलेगा, but आगे भी जाके बहुत कुछ से मिल सकता है. If you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. And this you have the power to revoke at any moment. Marcus? Scroll कर ऊपर थोड़ा. I cannot see that. Marcus Aurelius, Roman Emperor. Right. तो यदि आप किसी बाहरी चीज की वजह से दुखी हैं, तो दर्द उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि आपके मूल्यांकन के कारण है. और आप में किसी भी पल इसे बदलने की शक्ति है. मूल्यांकन के कारण मतलब एस्टिमेशन, मतलब जो मेजर है, क्या मेजर है आपका उसके लिए. एंड दिस यू हैव द पावर टू रिवोक. रिवोक मतलब हम लोग इसको किसी भी पल वापस बदल सकते हैं, वो हम में है. सो इफ वी आर डिस्ट्रेस्ड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल, कोई कुछ बोल दिया, तो जो पेन हुआ उसका क्या मेजर है, वो हम लोग में इतनी क्षमता है, शक्ति है कि हम लोग उसको बदल सकते हैं. When you are feeling enthusiastic, happy, and cheerful, those good feelings affect everyone you come into contact with. Even if you connect with a person just briefly in a store, on a bus, or in an elevator, when your good feelings make a difference to any person you connect with, the effect of that one instance on your life is almost incomprehensible. या तो हम लोग सोचे, हम लोग इसके बारे में तो सोचे ही नहीं. बस में इफ यू कम अक्रॉस एनी पर्सन, एलिवेटर में अगर हम लोग उनसे अच्छे से ग्रीट कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स अच्छा हो जाता है, तो उसका भी एक इफेक्ट है. योर गुड फीलिंग्स मेक अ डिफरेंस टू एनी अदर पर्सन. वो भी अच्छे फीलिंग में बोला वाओ हाउ पोलाइट शी वाज, तो वो भी अपने ऑफिस में जाके किसी और से या अपने घर में आके एक अच्छे से, इट इज ऑल अ रिपल इफेक्ट जो एक दूसरे से कनेक्टेड है. Remember, there is no such thing as a small act of kindness. Every act creates a ripple with no logical end. Scott आकांक्षा, Adams, एक बार अपने आप को म्यूट cartoonist. कर लेना. जस्ट म्यूट योरसेल्फ. हाँ हाँ अभी ठीक. Scott Adams, cartoonist. हमेशा याद रखें, दयालुता के छोटे काम जैसी कोई चीज नहीं होती. हर काम से एक लहर उठती है जिसका कोई तार्किक अंत नहीं होता. तो वो ये रिपल इफेक्ट. एवरी एक्ट क्रिएट्स अ रिपल विथ नो लॉजिकल एंड. रिमेंबर देयर इज नो सच थिंग एज स्मॉल. मतलब काइंडनेस का को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं कि आज छोटा काइंडनेस दिखे, आज हम लोग अच्छा भला, छोटा भला किए या बड़ा भला किए. इट हैज अ रिपल इफेक्ट. हम लोग का हो सकता है आज हम लोग किसी को 5 रुपया दे के हेल्प किए, लेकिन हम लोग को वो 5,000 के वे में भी आ सकता है. So there is no measure of it. Love is the solution and the answer to every relationship. You can never improve a relationship with negativity. Use the creation process for your relationships and give love to receive. Use the keys to power for your relationships. Notice the things you love. Make list of the things you love. Talk about the things you love and turn away from the things you don't love. Imagine having the perfect relationship. Imagine it at the highest level you can and feel having it with all your heart. If you find it difficult to feel good about a relationship, then love everything else around you and just stop noticing the negative things in the relationship.
तो लव इज द ओनली सॉल्यूशन जो है क्रिएशन प्रोसेस। क्रिएशन प्रोसेस क्या है? पहले हम लोग को थॉट में क्या है, हम लोग को वो होना चाहिए, वहां हम लोग के थॉट पहले क्रिएट होते हैं, फिर हम लोग फील करते हैं, फिर हम लोग उसको करते हैं, एक्शन में लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को मिलता है। सो यूज द कीज टू पावर फॉर योर रिलेशनशिप। तो हम लोग इसी के लिए हम लोग लिस्ट, जिसने नहीं बनाया बना ले, राइट, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स यू लव टू डू, यू लव टू हियर, यू लव थिंकिंग अबाउट, वो सब हम लोग करें। इमेजिन हैविंग द परफेक्ट रिलेशनशिप, इमेजिन इट एट द हाईएस्ट लेवल। हम लोग को हमेशा जो चाहिए उसी को इमेजिन करना है। जैसा रिलेशनशिप में चाहिए, अगर हस्बैंड के साथ बहुत कैसा रिलेशनशिप चाहिए, उसको नहीं भी है तो इमेजिन वही करना है। बच्चे के साथ जैसा रिलेशनशिप चाहिए उसी को हम लोग को इमेजिन करना है। कोलीग के साथ, जिसके साथ जैसा रिलेशनशिप चाहिए, हम लोग को उसी को विजुअलाइज करना है। एंड थिंक ऑल द गुड थिंग अबाउट द रिलेशनशिप एंड स्टॉप नोटिसिंग द नेगेटिविटी इन अ पर्सन। तो वो अपने आप सब चेंज होता चला जाएगा। Love can do anything for you. All you have to do is give love by feeling good, and any negativity in your relationships will fade away. Whenever you are faced with a negative situation in a relationship, the solution is always love. You won't know how it will be solved, and you can never know how, but if you maintain feeling good and give love, it will happen. The message from Lao Tzu, Buddha, Jesus, Muhammad, and every great being is loud and clear: love. तो अब तक जितने भी क्वेश्चन थे रिलेशनशिप में, इसको छोड़ के इसका कोई ही भी सोल्यूशन नहीं है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है। द ओनली थिंग इज टू गिव लव, ओनली थिंक अबाउट द गुड क्वालिटीज और यू टर्न अवे, हाउ यू रिएक्ट, दैट्स द ओनली वे। सो लव इज द ओनली थिंग विच वी कैन डू टू इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप। So the chapter now, the points of power, शक्ति के बिंदु। You read in English, रिंकू, मैं एक एक पॉइंट को हिंदी में पढ़ूंगी। Okay. Points of power. With every single person you come into contact, you are either giving love or you are not. And based on what you give, that is what you receive. आप जिस व्यक्ति के भी संपर्क में आते हैं, उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। Give love to others through kindness, encouragement, support, gratitude, or any good feeling, and it comes back to you multiplied in every area of your life. दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम देंगे तो यह लौट कर आपकी ओर आएगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में अच्छाई को कई गुना बढ़ा देगा। So see, this is what love can do, वो multiply कर देगा। Look for the things you love in a relationship more than you notice negative things, and it will appear as if something incredible has happened to the other person. Wow. जब आप किसी संबंध में नकारात्मक चीजों के बजाय प्रिय चीजों की तलाश करने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। अपने आप you will see the difference in that person. Trying to change another person, thinking you know what is best for another person, thinking you are right and another person is wrong, is not giving love. सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है, ये सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही है और सामने वाला गलत है, ये सोचना प्रेम देना नहीं है। Criticizing, blaming, complaining, nagging, or finding fault with another person is not giving love. किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार सोचना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। You have to be happy to receive the happy versions of other people. दूसरे लोगों का खुश संस्करण पाने के लिए आपको खुश रहना होगा। तो वी हैव टू बी हैप्पी टू रिसीव हैप्पी वर्जन ऑफ अदर पीपल। आप चाहते हैं सामने वाला भी खुश रहे तो पहले आपको खुश होना होगा। The force of love presents you with a whole array of personal emotional trainers disguised as everyday people, but they are all training you to change choose love.
Okay, choose love. एक सेकंड। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक पेश करती है। ये प्रशिक्षक रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। You can stick everything you love and want to you by looking for the things you love in other people and saying yes to those qualities with all of your heart. आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीज को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करनी है और दिल से हाँ कहना है। तो नाउअडेज किसी और के हम लोग क्वालिटीज जो भी देखेंगे, अगर हम लोग को वो क्वालिटीज अपने में चाहिए तो वी विल ओनली टॉक अबाउट दोस क्वालिटीज एंड वी विल स्टिक टू आवरसेल्फ। You can't talk about or hear negativity and have good feelings. नकारात्मक बात बोलते या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। राइट। Life is presenting every person and circumstance to you so you can choose what you love and what you don't love. When you react to anything, you are reacting with your feelings, and as you do, you are choosing it. जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश कर रहा है, ताकि आप यह चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से आप प्रेम करने या ना करने का चुनाव करते हैं। You can't change a negative situation with bad feelings. If you keep reacting negatively, your bad feelings will magnify and multiply that negativity. बुरी भावनाओं से आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को नहीं बदल सकते। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देगी। If you are feeling fantastic, the force of your magnetic field creates a shield that no negativity can penetrate. यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना लेती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेद सकती। Changing the way you feel is easy compared to running around trying to change the circumstances of the outside world. Change your feelings and the outside circumstances will change. बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज्यादा आसान है। भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएगी। So true. The more you give love and feel good, the more magnetic your field becomes, and the more it expands, drawing everything and everyone you love to you. आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज्यादा चुंबकीय बनता और फैलता है तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करता है। Yeah. So this was the gist. In a gist, the points of power of the whole chapter. We are through with this chapter now. अरे इसने में तो सबको ये points of power ही पूरा नहीं पढ़ेगा। Yes. So any question regarding this chapter? बहुत ही अच्छा है, रिलेशनशिप के बारे में है, जिसको इम्प्रूव करना है, एरिया में जो भी देखना है। You know, very well said. Akanksha, any question? Any sharing? आज का तो ये था कि आई बिकम मोर, मतलब जैसे आज नॉर्मली होता है ना कि हम पार्किंग वाले को पार्किंग दे रहे हैं तो कभी थैंक यू नहीं मैंने बोला। हाँ। मतलब जो था पार्किंग है, टुडे आई लाइक व्हेन आई वाज गिविंग मनी आई वाज लाइक कि ये मनी फ्रूटफुल रहे उसको भी और मेरी तरफ से भी, एंड देन आई वाज टेलिंग हिम थैंक यू। मतलब फर्स्ट टाइम आई थिंक मैंने कोई पार्किंग वाले को थैंक यू बोला। मतलब कभी लगा देता था तो हाँ जी भैया ठीक है थैंक यू, मतलब आई कुड सी चेंजेस इन मी, in you also, and at times सामने वाले से रिस्पॉन्ड भी आता है, even they feel good. ये है। रिसेंटली तो इवन आई वाज लाइक क्वेस्ट से आ रही थी तो वो जो फ्लाईओवर नहीं होता है, ऑरेंज हुआ एंड मेरा बीच में था तो मैं थोड़ा आगे चली गई, थैंक यू श्वेता। तो उसके बाद आगे गई और वो पुलिस ने से रोक दिया, मुझे तो लगा आज गया चालान लेगा, तो बोला आप साइड में करिए, साइड में कर दी तो बोले कि रेड हो गया था। हमने ज्यादा रेड तो नहीं हुआ था, ऑरेंज में था,
ऑरेंज में था, मेरे को लगा बीच में नहीं रोकना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा आगे ले आई, बट इट्स ओके, आई एम सॉरी। वो कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है जाइए, नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहिएगा। हम लोग वाह बच गए आज तो। I know. वर्ड्स कैन एक्चुअली चेंज एवरीथिंग। Exactly. मम्मा वाज लाइक, माय डॉटर वाज लाइक, मम्मा अबे क्या इतना प्यार से, थैंक यू। हम तो इट हैज इट विल हैव अ रिपल इफेक्ट नाउ। तो पायल, जैसे कोई रिलेशनशिप, जैसे एक एक कोई फैमिली में एक एक बंदा तो थोड़ा टेढ़ा होता ही है, हाँ, सबके you know, सबके एक एक सैंपल पीस तो होते ही हैं। तो तो अगर जैसे अगर उसके लिए मन में थोड़ा सा करवाहट या फिर इरिटेशन हो, तो आई स्टार्ट थिंकिंग द बेस्ट 10 क्वालिटीज, 10 नहीं तो 5 भी क्वालिटी एटलीस्ट। हाँ 5 उसको लिख लो, उसको बार बार वही बोलो। बोलो। वो उनमें जो बैड क्वालिटीज है, जो आपको नहीं चाहिए, उसके बारे में ना सोचना है, ना बोलना है, ना बात करना है ना। क्योंकि अगर हम लोग एक सोचेंगे ना, तो उनकी 10 नेगेटिव क्वालिटीज दिमाग में आते जाएंगे, और वो हम लोग उनके बारे में बिटरनेस बढ़ता जाएगा। उसको तो ये सोचना है कि लिखना भी है? इट्स बेटर टू राइट इट डाउन। मैजिक बुक में तो जो एक्सरसाइज था, राइट इट डाउन। राइट इट डाउन। क्या है ना, और बहुत सारी बातें याद आने लगते हैं, वो फीलिंग्स आने लगते हैं। इट इज ऑल अबाउट योर फीलिंग्स। ठीक। और कभी कभी हम लोग को क्या लगता है ना, who has said that we are only correct? We might be wrong also ना। ये कौन जज कर? हम लोग खुद ही तो अपने आप को जज कर रहे हैं। मे बी वी आर रॉन्ग। तो हम लोग कैसे दूसरे को कैरेक्टर एनालिसिस बोलते हैं ना, हम लोग करके बैठ जाते हैं, एज इफ वी आर तो बल्कि एकदम साधु संत हम लोग बैठे, हम लोग में तो कोई बैड क्वालिटी नहीं है। हाँ, ऐसा तो है नहीं। हम लोग में भी होगी बैड क्वालिटी, सो व्हाई शुड सम अदर पीपल मस्ट बी टॉकिंग अबाउट अस आल्सो। बट हम लोग को उसमें जाना ही नहीं है। हम लोग को अपना मैग्नेटिक एंड ऑरा इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, we attract only those kind of people in our lives, the people whom we want. Now, if you like extrovert people, so maybe you will attract them if you just think about them, if you just give love to people. So it is all on us. हम लोग को हमेशा choice मिलता है. We can't change anybody. We can only change ourselves. रिचा नहीं आओगी क्या कैमरा ऑन करके? ब्लैंकेट में हो? हाँ। ब्लैंकेट का टाइम जा रहा है, विंटर्स भी जा रहा है। आ रहे नहीं तो वहां से भी ब्लैंकेट के अंदर से भी ऑन करके बात तो कर सकती है। Exactly. Akanksha, you have joined Minal session ना? Who? Yes. आकांक्षा? हाँ, she wanted ना मॉर्निंग का, उसकी मदर को, तो उसमें उसको और अच्छे से समझ में आएगा। रिलेशनशिप वाला जो तुम बोल रही थी ना पायल, हाँ, हिंदी है क्या? लिखना, तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। वो पावर करा रही है कि अच्छा मैजिक करा रही है ना वो तो? हाँ, मैजिक में बहुत अच्छे से एक्सरसाइज होगा ना। पायल, आई वांट टू शेयर वन थिंग। यस माधुरी। वो जो इंटरमाइल्स का एक ऐप होता है, तो इट इज देयर इन माय मोबाइल। इट्स अ स्पिनिंग व्हील। तो अभी मेरे काफी दिनों से बहुत पॉइंट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं उसमें। मतलब मैं नहीं करती हूँ, मेरी डॉटर करती है। तो उससे वाउचर्स मिल रहे हैं मेरे को Amazon और पे। I wanted to share that. Wow. You are attracting money in your life. Yeah, vouchers. Wow. वो तो मनी एनी फॉर्म में आएगा, कहीं से भी मिलेगा, कैसे भी या। और एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था मेरे को। अभी 2 days पहले मेरे ब्रदर इन लॉ, उनकी पूरी फैमिली आई थी इधर। रात में आई थी, उनको मेरे बच्चों के स्केट्स लेने थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था मुझे, मैं बोली हाँ एक अलमीरा में है, उसी में पड़ा है। ओके, अब वो लोग रात को आए और मैं अलमीरा खोली, मेरे को मिला नहीं वहां पे। ठीक है, अभी दिवाली की सफाई हुई थी, तो मैं ना दूसरी जगह रख दी थी, मैंने कम्प्लीटली फॉरगॉट। ओके, अब मेरे हस्बैंड मेरे पे चिल्लाने लगे, तुमको पहले ही बोले थे, तुमको पहले ही बोले। मैं बोले मिल जाएगा, मिल जाएगा। मतलब मैं एकदम अपने आप को पॉजिटिव रख रही थी, नहीं मेरे को गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि और फिर मैशअप होता। मेरे को लगा, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पूरे ड्रॉर्स खोल लिए, बेड के ड्रॉर खोल लिए, सब जगह, ऊपर का टॉप लोड सब जगह खोल लिए, बट आई कुडंट गेट इट। उसके दोनों सन एंड डॉटर भी आए थे, उनको ही चाहिए था कि अब मैं क्या करूं, पर मेरे को मालूम था मेरे पास है, कहीं रखा हुआ है, कहीं रखा हुआ है। तो फिर मैं इनको बोली आप एक बार बैठो, हम अपने आप खोजेगा, हमको याद आते हैं, हम खोज लेंगे। एंड विद इन 20 मिनट्स आई गॉट।
Good, yeah. Wow. So see, you did not react. वो situation भी Yeah. वैसा नहीं आया, and you found also. Because you मतलब kept he was yourself- shouting at me. He was shouting at me in front of everybody. मैं बोली मिल जाएगा तो कहीं नहीं. Obviously मैं दी नहीं हूँ क्योंकि इतने अच्छे स्केट से मैं रखी हूँ. क्योंकि हाँ. मेरे को उनको ही देना था. But अभी मेरा भी traveling इतना था, तो I completely forgot मैं कहाँ रखी. Then मेरे को मिल गया finally. I was above that tip point. Absolutely. You did not let it go, है ना? अपना पूरा एरिया बना के रखा पॉजिटिव में. Wow. तो यही हम लोग को वो दैट इज द स्ट्रेंथ वी हैव टू बिल्ड. और वो प्रैक्टिस करते करते आएगा, एक दिन में नहीं आएगा. इट हैज टू बी लाइक एन एवरीडे अफेयर. और इसीलिए उसके लिए स्ट्रक्चर बना है द मैजिक बुक. वो ग्रेटिट्यूड देते देते करते करते ना वो हमेशा अवेयरनेस एंड रियलाइजेशन आ जाता है, जिससे वो बिल्डअप हो जाता है. एंड दैट बिकम्स आवर स्ट्रेंथ. और ऋचा, यू अंडरस्टूड? अभी कितने से तुमसे बात ही नहीं हुआ है, तो फिर नेटवर्क गया क्या? वो फ्रीज हो गई. नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू. आवाज नहीं आ रहा है ऋचा. और जितना तुम रिकॉर्डिंग भेजती हो, फिर गया. कैन यू हियर मी? आ रहा है, जा रहा है. वैसे वी कैन हियर यू नाउ. मे बी नेटवर्क का कुछ इशू होगा. अभी आ रहा है. तो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि जो बोलती हो यहाँ पे, मतलब भी अपन पढ़ते हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अब्सॉर्ब एवरीथिंग. रिकॉर्डिंग भी कुछ कुछ सेशंस का हम एक वापस से देख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे कहीं जैसे नहीं रहता है, तो एट नाइट ब्रेक हो रहा है वॉइस. ब्रेक हो रहा है. हाँ. My voice is रिकॉर्डिंग breaking. देखो. हाँ, मतलब आ रहा है और जा रहा है. हम मे बी सम नेटवर्क इशू. हाँ हाँ. चलो लेट्स पे अ ग्रेटिट्यूड से पहले कि पूरा ही नेटवर्क वैसा हो जाए. स्टार्ट प्रेइंग ग्रेटिट्यूड टू योर नेटवर्क ऋचा. अपने आप ठीक हो जाएगा. यस यस. Thank you to the Supreme Power and the universe for all our relationships to be rocking and happy. तुम पायल, हाँ, प्राची वाले सेशन में जो वो लास्ट में कराती है, यू डू दैट मेडिटेशन? प्राची वाला सेशन तो ऐसा है ना, उसका टाइमिंग ऐसा है कि हाफ द टाइम आई एम अनेबल टू, लाइक टुडे आल्सो आई हैव माय ट्यूशन, तो मेरा वो हो नहीं पाता है. ओके, बट दैट मेडिटेशन इज वेरी नाइस. हाँ, वो पूरा अच्छा लगता है. माधुरी इज ऑलवेज देयर ना. माधुरी इज देयर. It's very nice. स्पेशली वो जो यूनिवर्स को जो अपने हाथ उठाते हैं, Abundance. अबंडेंस पोज, वो उसमें लगता है कि जैसे कि अंदर जा रहा है, दोनों हाथ से अंदर आ रहा है. हाँ, इट इज सो पावर आ रहा है. The more we practice, the more strong our magnetic field will be. Like माधुरी इतना meditation, ये सेशन भी, प्रिया का सेशन भी इतना करती है ना, तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया. It should be our like, it should become our second nature. तब वो हम लोग का इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम लोग जिस चीज के बारे में सोचते हैं, जो चाहते हैं, वो अट्रैक्ट होता है इससे. So we have to make it stronger and stronger. जो कल तुझे भेजा था रिचा, परसों या कल भेजे थे ना तुमको, you have seen that? हाँ. No, I didn't see it. Oh, I will see. yeah, that one only. I'm sorry, I haven't seen it. मैं ना पापा को भेजती हूँ मेरे, और मैं बीच बीच में रिचा को भेज देती हूँ वो वाला का यूट्यूब लिंक. Okay. देखो प्राची के ना ये संडे रिफ्लेक्शन के भी बहुत अच्छे होते हैं. बहुत अच्छा होता है. यस. And उसका Whenever timing is very good. 1 hour done. Yeah. इस Is वाले this for meditation? No, even she's doing 4 books, Akanksha. There's a person called Prachi Agarwal. She's doing 4 books. उसने अभी तक पावर कर लिया, मैजिक कर लिया. अभी उसका 3rd book is going on. लुइस हे का You Can Heal Your Life. तो उसमें एंड में वो थोड़ा सा मेडिटेशन भी कराती है. That is very good. And every Sunday she gives 1 hour session. Those are like Sunday reflection. उसमें किसी ना किसी को वो इनवाइट करती है. उनसे वो एक सेशन होता है उनका 1 hour का. You know, at times एक बार शायद कोई एस्ट्रोलॉजर थे, एक बार उनके खुद के इस बार कम्युनिकेशन का था, बहुत अच्छा था.
इस बार, हाँ. but I could not hear that also. एक बार communication. Very nice it was, Payal. Okay, I can see recording तो है. Yeah, I have हाँ, also वो seen तो the उसके recording bond only. मन में रहता है ना. हाँ. If you want, Akanksha, I can share. हाँ. मैं हाँ, उसका please ऐसा do. करूंगी. You have to fill a form. वो फॉर्म Okay. फिल करने से तुम वो पावर ऑफ ड्रीम्स के ग्रुप में आ जाओगे. उसके बाद Okay, यू विल ठीक गेट है. एवरीडे लिंक, और यू कैन गो टू फेसबुक बॉन्ड 1-to-1 उसके साइट पे ये जाके आप भी. मेरे को और भेज देना. I'll just fill the you form. fill that form and become a power. नहीं तो मुझे एवरीडे वो लिंक भेजना होगा. एंड हाँ, if you fill that exactly, ठीक है. form तो आप आप मुझे पावर ऑफ भेजना, ड्रीम्स वाले ग्रुप में आ जाओगे. अभी आकांक्षा वो नया बुक भी चालू करने वाली है आफ्टर 2 days. मिरर Mirror वर्क. work. हाँ. मिरर आप वर्क. वो लिंक या फिर वो फॉर्म देना ना, मैं फिल कर दूंगी. नहीं वो लिंक देगी ना तो उसमें तुम हो जाएगा. एवरीडे का लिंक है. आई अच्छा. सेंड वन लिंक. उसमें क्या एवरीडे वो सेम लिंक से ही खुलता है. एंड इट इज ठीक है, आप फ्रॉम मेरे को भेजना. 5:15 in the evening. इवनिंग. हाँ, इवनिंग फाइन. ठीक है, आप भेजना मेरे को. And I have that Amrita's number also that I will send. तो वो ना फॉर्म भेजेगी. That you just fill it up and submit it. So you will be in that WhatsApp group. Okay, so sweet. Thank you so much. Thank you, Akanksha. चलो, so all have a magical relationship. Work on your relationship. Make your aura so strong कि हम लोग सब कुछ को attract कर ले अपने तरफ. जो Thank चाहते हैं you. वो मिल जाए. Wish Thank you you so the much. same. Yeah. Thank you. Thank you, Bye-bye. Payal. Thank you. Bye. Bye bye.